Okay. So last time we ended on carbon monoxide poisoning, and that we finished the total oxygen transport. Now, today we will have briefly the carbon dioxide transport. Not much about it, quite similar to that as we studied the oxygen transport. But yes, certain differences. We will talk about those briefly, and then we will move on to the diseases. Now, transport of carbon dioxide in blood, of course, uh, transport is not nearly as problematic as it was the transport of oxygen. Reason being, we all know that the diffusibility, the diffusion coefficient of carbon dioxide is much more as is 20 times more as compared to oxygen, right? So under normal resting conditions, an average of 4 ml of carbon dioxide are transported from the tissues to the lungs in each 100 ml of blood, right? How much was there under normal resting condition? In the case of oxygen, it was 5 ml of carbon dioxide. Over here, it is 4 ml of carbon dioxide, right? Okay. So keep this in mind. We will come to this. We will come back to this after some time. Now, chemical forms in which the carbon dioxide is transported. For oxygen, we had just two forms. One combined with hemoglobin and other dissolved in plasma water, right? Now, for carbon dioxide, we have three such things. One, of course, combined with hemoglobin. Second, in the form of HCO3 ion, right? And third, in the dissolved form, that is in the plasma. So we have three forms of carbon dioxide transport. The most significant one and most prevalent one is in the form of bicarbonate ions. That comprises almost 70% of total carbon dioxide transport. Now, the 23% goes to its combination with hemoglobin, right? And 7% goes to the dissolved form of carbon dioxide, right? So it makes up 100%. So when the carbon dioxide diffuses out of the tissues into the out of the tissue cells in the dissolved molecular form, it when it enters the capillaries, it initiates many instantaneous physical and chemical reactions, right? Now, this is a diagram which is we call this diagram as the chloride shift diagram, and it is showing the transport of carbon dioxide in the blood and with the hemoglobin, right? How does it do that? It gives us almost very clearly the two types of transports in this diagram. So we need to understand this diagram. What is happening? This is the cell where the metabolism is occurring. This is a red blood cell. This is a tissue cell where the metabolism is occurring. This is a red blood cell. Now, this red blood cell, what it is doing is that it is getting the carbon dioxide from this actively from this actively metabolizing cell. Now, the carbon dioxide goes into the red blood cell, and it when it goes into the red blood cell, it first of all combines with water inside. Over here, carbon dioxide plus water. We need to understand this reaction. You must have studied this reaction in your biochemistry classes as well, because this is a very important reaction. Now, this carbon dioxide, it combines with water, and it makes the carbonic acid. Now, this is in the this carbonic acid is formed in the presence of an enzyme, carbonic anhydrase. Now, this carbonic anhydrase, it expedites it or catalyzes this reaction 5,000 folds. If carbonic anhydrase is not present, this reaction would be occurring at a rate 5,000 folds less than if it is present, right? So as it is usually present and normally present in the human body and in the RBCs, so this reaction is a very fast occurring reaction. Now, this carbonic acid, it is dissociated into two ions, H ion and bicarbonate ion, right? Now, so it means that the carbon dioxide that came into
the red blood cell from a metabolizing tissue cell is it combines with the hydrogen, with the water, and it forms carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase, and then this carbonic acid it immediately dissociates into bicarbonate ion and H ion. Now, this H ion it can combine with hemoglobin due to its buffering action, as hemoglobin we all know is a very good buffer, or a very good blood buffer. So it will combine with that. And the other thing is that our main concern is that this HCO3 it goes out and chloride comes in. Now the chloride is negatively charged, HCO3 is negatively charged. So as HCO3 is going out to keep the uh, electronic neutrality balance, the chloride comes in. So we call it chloride shift. We call it chloride shift, right? Because the chloride is moving in and HCCO3 is going out, and this is done through a carrier protein which can cause this counter transport. HCO3 is being taken out, chloride is being taken in. So this is due to a counter transport. This is a counter transport. A carrier protein is involved, which would take the HCO3 out and which will bring the chloride in, right? So this is one way of getting rid of the carbon dioxide, right? This is one way. And I told you that this HCO3 comprises 70% of this carbon dioxide transport. Now, the second method is this, that the carbon dioxide, it combines with hemoglobin, right? When it combines with hemoglobin, right? When it combines with hemoglobin, it will make a compound, right? It will make a compound. This compound would cater for 23% of the carbon dioxide transport, right? This compound between the carbon dioxide and hemoglobin, right? This will take care of 23% of the carbon dioxide transport, and we call this compound as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन. ये जो कंपाउंड बनता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, इसको हम कहते हैं कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, CO2HGB. ठीक है, रिवर्सिबल है, ठीक है. इसीलिए जब यही कंपाउंड जब जाता है उसमें पल्मोनरी कैपिलरीज में, तो वहां पे बड़ी जल्दी ये डिसोसिएट हो जाता है और CO2 जो है वो एल्वेलाई में रिलीज हो जाती. ठीक है, ठीक हो गया. तो एक और बात जो HCO3 वाले के बारे में आपको बतानी जरूरी थी कि इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इट इज टेकिंग केयर ऑफ द 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, ठीक है, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डाल दें जैसे कि एसेटराजोलामाइड है, तो इसकी वजह से जो 45 mmHg जो हमारी नॉर्मल टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ के 80 पे जा सकता है. सो बाय दैट व्हाट वी लर्न इज कि इट विल कॉज अ ह्यूज एसिडोसिस, और एसिडोसिस जो है वो अल्कलोसिस की निस्बत ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा डेंजरस है. अल्कलोसिस भी डेंजरस है लेकिन एसिडोसिस बहुत ज्यादा डेंजरस है, एंड दैट इज व्हाई द pH इज कंट्रोल्ड इन अ वेरी टाइट रेंज. तभी जो बॉडी पीएच है, ब्लड पीएच है, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी हैं, उनकी जो पीएच है इट इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ और कंट्रोल्ड इन और रेगुलेटेड इन अ वेरी टाइट रेंज. ठीक है, तो तीन चीजें हमने कर ली कि तीन चीजें हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है. और अगेन दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लेबल करनी आनी चाहिए, और इसमें जो स्टेप्स हैं वो आपको नजर आने चाहिए, आपको क्लियरली नजर आने चाहिए. और ये जो मैंने कहा कि कैरियर प्रोटीन से HCO3 बाहर जाता है, क्लोराइड अंदर आता है, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट है, और ये इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व्ड 7%, HGB CO2 कंपाउंड जो बन रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वो 23% और HCO3 से 70%. सो इट
मेक्स अप दी 100%। ठीक है, इतना हमें पता हो कार्बन डाइऑक्साइड की इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो दैट इज एनफ। अच्छा, अब इसमें एक डिसोसिएशन कर्व, जैसे हमने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक डिसोसिएशन कर्व। इसमें सिर्फ समझने वाली बात इतनी है कि जो पल्मोनरी ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 40 होती है, उसका पार्शियल प्रेशर 40 होता है। जो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 45 होता है। ठीक है, तो ये 40 है, ये 45 है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में। टिश्यूज में 46 होता है, इनसाइड द टिश्यू सेल्स 46 होता है। ठीक है, लेकिन जो जिन कंपार्टमेंट से हमारा ज्यादा वास्ता पड़ता है या बॉडी जिनके साथ ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड पल्मोनरी ब्लड। ठीक है, जो पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड है उसमें, तो पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में 40 है, जो टिश्यू है उसमें, जो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें 45 है। अच्छा, अब यहां से हमने देखना सिर्फ इतना है कि इसकी जो वॉल्यूम परसेंट है, अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो क्या है, गैस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो तो हमने देख लिया कि ये 40 है और ये 45 है, क्योंकि ये इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, इसीलिए हम इन्हीं दो प्रेशर के साथ हमारा कंसर्न है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड जो है वो वॉल्यूम्स परसेंट में है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि व्हेन इट इज, जब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो 45 है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इन इट्स वॉल्यूम परसेंट वो 52% है। ये अराउंड, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें इधर, तो ये 52% के अराउंड आती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड की बात करें तो हम कहते हैं कि वो 40 है, और अगर हम 40 से इस लाइन से, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो 48 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर, वो वॉल्यूम परसेंट्स में सिर्फ 4% का फर्क लाती है। जो इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है वो वॉल्यूम परसेंट्स में सिर्फ 4% का फर्क लाती है, डिफरेंस ऑफ ओनली 4%। अगर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो वॉल्यूम परसेंट कितनी होगी, 52% होगी, विच इज दिस। ठीक है, यहां से अगर हम ड्रॉ करें इस पॉइंट से, और अगर हम बात करें पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड की तो वो कितनी होगी, दैट वुड बी 48%। ठीक है, तो ये सिर्फ 4% की रेंज है जिसमें इसको नॉर्मली एट रेस्ट मूव करना चाहिए। तो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ भी उसने यही दिखाया हुआ है बेसिकली, ये 52% है, ये 48% है, यहाँ भी इस डायग्राम में भी उसने यही दिखाया हुआ है। बाकी इसमें हमारे लिए कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें से। तो अब हम जो है ना वो चले जाएंगे अपनी दूसरी पे, आज डिजीजेज वाले चैप्टर पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पॉज हो गया, तो शेयरिंग पे कहाँ से जाएंगे, ठहरे, न्यू शेयर पे जाते हैं और हम ये शेयर करते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम आज पढ़ेंगे जी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसीज, लंग की जो कुछ मेजर डिजीजेज हैं और वो क्यों, और उनका क्या इफेक्ट है कैपेसिटीज पे, कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बात की थी उनकी FEV1 की और FVC रेशियो की। ठीक है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि वो कैसे हमें हेल्प करती है वो डायग्नोसिस करने में और स्वेरिटी ऑफ डिजीज को असरटेन करने में। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी इनसफिशिएंसीज हैं या जो लंग इनसफिशिएंसीज हैं, इसमें इसकी मेन कॉजेज क्या हो सकती हैं, बड़ी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेजर कॉजेज हैं, एक तो इनएडिक्वेट वेंटिलेशन हो सकती है। ठीक है,
यानी कि क्या हुआ कि वेंटिलेशन ही प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एयर ही अंदर नहीं आ रही, ठीक है। एक हो सकता है कि एबनॉर्मेलिटीज, एयर तो आ रही है लेकिन डिफ्यूजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन नहीं हो रही, ठीक है। डिफ्यूजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन नहीं हो रही, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं आ रही प्रॉपरली, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही प्रॉपरली, तो ये रीजन हो सकती है। या एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज हो सकता है। बाहर से वेंटिलेशन भी ठीक हो रही है, एयर अंदर आ रही है, डिफ्यूजन भी ठीक हो रही है, लेकिन आगे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है टू द टिश्यूज एंड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, यानी कि फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज और फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, उसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स पे प्रॉब्लम्स आ सकती, ठीक है। तो अब हम कुछ डिजीजेस देखेंगे और उनमें उनमें हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये 3 ये बातें होंगी। अच्छा, एक और बात बड़ी जरूरी है कि जब हम लंग की डिजीजेस की बात करते हैं तो हम जो ब्लड गैसेज है, जिनको हम आर्टीरियल ब्लड गैसेज कहते हैं और ब्लड पीएच कहते हैं, उनको वो बड़े अच्छे डायग्नोस्टिक टूल हमारे बन सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ पल्मोनरी परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा लंग कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो टेस्ट ये है, ठीक है। क्या क्या है वो? ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच, ठीक है। ये 3 चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये देखने में कि हमारा लंग जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आनी है तो उसको किसने लेके आना है? लंग वेंटिलेशन होनी है तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज ने करनी है। एक दफा वो एल्वेलाई में आ जाती है तो उसकी आगे डिफ्यूजन किसके साथ होनी है? पल्मोनरी ब्लड के साथ होनी है, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के साथ होनी है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रही है वो किसने लेके आनी है? ब्लड ने एल्वेलाई तक लेके आनी है। आगे एल्वेलाई ने उसको एक्सटर्नल जो है उसके साथ एटमोस्फेयर के साथ उसको एक्सेल करना है, ठीक है। इसी तरह पीएच जो है, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी प्रॉपरली एक्सेल नहीं हो रही तो क्या होगा? पीएच लो हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सेल हो रही है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अंदर आ रही है तो पीएच हाई हो जाएगी, यानी कि अल्कलिनिटी आ जाएगी, ठीक है। पहली एग्जांपल में एसिडिटी हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी स्टडी करना, इनका टेस्ट सजेस्ट करना किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है, बड़ा जरूरी है, ठीक है। एक और चीज बड़ी जरूरी है, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको एक और, यानी कि जिसको हमने कहा था फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, एफवीसी जिसे हम कहते थे, उसके साथ ही मैंने आपको एक और बात बताई थी, FEV1, के पहले सेकंड में जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हम एयर का निकालते हैं वो FEV1 कहलाता है। फर्स्ट सेकंड में जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में जो वॉल्यूम ऑफ एयर निकलता है दैट इज FEV1, क्योंकि वो पहले सेकंड में निकला, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो है, ठीक है, ये भी एक काम की चीज है कि ये पता किया जाए कि ये किन डिजीजेज में ये कम हो जाता है, किन डिजीजेज में ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई खास चेंज नहीं आती, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एस्थमा में द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो बिकम्स स्पेशली ग्रेट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, क्योंकि एस्थमा में जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, चाहे एल्वेलर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ता रहे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आगे जो ब्रोंक्यूलर कोलैप्स है वो भी उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से कि आफ्टर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपिरेशन बाकी एक्सपिरेशन जो है वो बड़ी ही मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो ये एक एस्थमा की कंडीशन है, ठीक। Now, when a person expires with great force, the expiratory airflow reaches a maximum flow beyond which the flow cannot be increased anymore, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो, कि जब एक बंदा मैक्सिमल फोर्स के साथ एक्सपायर करता है तो आफ्टर अ सर्टन लिमिट जो एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। It is much greater when the lungs are filled with a large volume of air than when they are almost empty. Of course, जब lungs पहले ही empty हैं तो वो कितना हमें expiratory flow दे देंगे, और जब lungs already they are filled to their maximum
तो हमें मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें माइंड में रख के हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन चीजों की आगे क्या इंप्लीकेशन है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ द एल्वेलाई एंड एयर पैसेजेस कॉज्ड बाय कंप्रेसिंग द चेस्ट केज। अगर हम चेस्ट केज को कंप्रेस करें तो वो क्या करेगा, वो एल्वेलाई पे भी फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो हमारे एयर पैसेजवेज हैं उन पे भी फ्रॉम द आउटसाइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, नाउ दिस प्रेशर कंप्रेसेस द आउटसाइड्स ऑफ द एल्वेलाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, नाउ इट फोर्सेस, जब वो एल्वेलाई पर ये प्रेशर क्रिएट करता है तो वो एल्वेलाई में से फोर्स को बाहर को टुवर्ड्स द ब्रोंक्यूल्स, बाहर को एयर को एक्सपेल करने की कोशिश करता है। लेकिन साथ साथ ही क्योंकि वो ब्रोंक्यूल्स को भी कोलैप्स कर रहा होता है एंड दैट विल अपोज मूवमेंट ऑफ एयर टू द एक्सटीरियर। ठीक है, नाउ once the bronchioles have almost completely collapsed, so further expiratory force can still increase the alveolar pressure, but it also increases the degree of bronchiolar collapse and airway resistance by an equal amount. तो इसका मतलब ये है कि ये वो सिचुएशन है जहां पे कि हम फर्दर एक्सपिरेटरी फ्लो रेट नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वेयर जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट को फर्दर एनहांस नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी एनहांस्ड क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एल्वेलाई को तो कोशिश कर रहा है कि वहां से एयर बाहर निकले, बट एट द सेम टाइम जहां से एयर निकलना है ब्रोंक्यूल से, ठीक है, ब्रोंक्यूल से ही ब्रोंकाई में आएगी ना और फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो अगर आगे से ब्रोंक्यूल्स को भी वही फोर्स ही कोलैप्स कर रही है तो इसका मतलब है कि आफ्टर जब ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएंगी, दोनों फोर्सेस, ये एक ही फोर्स है जो कि दोनों पे एक्ट कर रही है, तो जब ये दोनों पे इसका एक्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि फर्दर एक्सपिरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो उसने दिखाई है, ये देखो, ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलस है और ये आगे एयर को किधर को एक्सपेल कर रहा है, ये ब्रोंक्यूल्स की तरफ। तो वो दिखा ये रहा है कि यही फोर्स जो है वो यहां भी एक्ट कर रही है और यही फोर्स जो है वो ब्रोंक्यूल्स पे भी एक्ट कर रही है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? तो ये इसलिए एक मैक्सिमम फ्लो रेट के बाद फर्दर एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है बढ़ाना वो मुमकिन नहीं रहता। ठीक है, बल्कि वो ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो, ये टोटल लंग कैपेसिटी से हमने इंस्पायर करने के बाद ये हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन की, तो शुरू में तो एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बड़ी तेजी से बढ़ा। ठीक है, क्योंकि अभी उन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं किया था। ठीक है, मतलब वो एक ही फोर्स के दो एक्शंस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं किया था, यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि एल्वेलाई पे भी काम कर रही थी और ब्रोंक्यूल्स पे भी काम कर रही थी। ठीक है, तो तब तक तो ये एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बड़ी तेजी से बढ़ गया, लेकिन उसके बाद वो यहां आके रुक गया। ठीक है, उसके बाद वो यहां आके रुक गया। ठीक है, नाउ जब एक दफा वो रुक गया तो फिर इसके बाद जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जैसे ये उसने दिखाया है। उसके कम होने की रीजन क्या है? Enlarged lung में the bronchi and the bronchioles are held open partially by way of elastic pull on their outside by the lung structural elements. लंग के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो ब्रोंकाई पे और ब्रोंक्यूल्स पे एक पुल रखते हैं और उनको पार्शली ओपन रखते हैं। ठीक है, लेकिन एज द लंग बिकम्स स्मॉलर, जैसे जैसे लंग में से वॉल्यूम निकल जाता है तो ये स्ट्रक्चर्स रिलैक्स कर जाती, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा इजीली और ज्यादा तेजी से कोलैप्स कर जाते टू द एक्सटर्नल चेस्ट प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए इनिशियली एक्सपिरेटरी फ्लो रेट या एक्सपिरेटरी एयर फ्लो बड़ा तेज हुआ, उसके बाद वो रुक गया थोड़ी देर और फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब लंग में पीछे वॉल्यूम ही नहीं रह गया और जो आपकी इलास्टिक स्ट्रक्चर है लंग्स की वो इजीली कोलैप्स कर रही हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो ये डायग्राम ये बताती।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो। ठीक है, इसका हम देखते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो क्या है मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की और वॉल्यूम कर्व, ये हम देखते हैं कि ये क्या है। इसमें वो कहता है कि टू टाइप्स ऑफ लंग डिजीजेज हैं, एक कंस्ट्रिक्टेड लंग्स हैं जिसमें कि लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और एक जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि एक कंस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं और एक वो हैं जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब वो कहते हैं कि जो कंस्ट्रिक्टेड लंग है, ठीक है, उसमें टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों कम हो जाते हैं। जो कंस्ट्रिक्टेड लंग है, एक लंग जो कि फाइब्रोज्ड हो गया, कंस्ट्रिक्ट कर गया, यानी कि उसका वॉल्यूम ही कम हो गया, तो ऑफ कोर्स उसकी टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और जो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिकॉज द लंग कैन नॉट एक्सपैंड टू अ नॉर्मल मैक्सिमम वॉल्यूम even with the greatest possible expiratory effort, the maximal expiratory flow cannot rise to equal that of normal curve. तो नॉर्मल कर्व ये उसने दिखाया, ये देखो, ये नॉर्मल कर्व है, ये रेड वाला जो है, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ये उसने दिखाया है कंस्ट्रिक्टेड लंग्स में, कंस्ट्रिक्टेड लंग में, ठीक है, और ये उसने दिखाया है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां वो ये दिखा रहा है, देखो कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम पहले यहां पे था, ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम कहां चला गया, यहां चला गया और कम हो गया, ठीक है, पहले 1200 पे था, अब कहां चला गया, ये ऑलमोस्ट 800 पे आ गया। ये किस में आया, कंस्ट्रिक्टेड लंग में। इसी तरह वो दिखा रहा है कि इसमें जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई कंस्ट्रिक्टेड लंग में। ये देखो, टोटल लंग कैपेसिटी वैसे कितनी होती है, नॉर्मली 6 होती है, ये कितनी आ गई है, 3 पे आ गई, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो गई और रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो गया, ये किसमें, कंस्ट्रिक्टेड लंग में। अच्छा, वो दिखा रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग में क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग में वो ये दिखा रहा है कि ओवर पैसेज ऑफ टाइम, कुछ अरसा इसी तरह जब डिजीज चलती है तो फिर उसके बाद ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। ये देखो, टोटल लंग कैपेसिटी 6 से उठ के 7 पे चली गई, ये देखो, ये टीएलसी कहां आ गई है, 7 पे आ गई है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वो कहां आ गया है, वो भी ऑलमोस्ट 3.25 3.5 पे आ गया, 3.5 पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होगी तो वो टोटल लंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टोटल लंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देगी। क्यों, क्योंकि एयर अंदर ट्रैप हो जाती है, एयर अंदर आ तो जाती है, इंस्पिरेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में, लेकिन एक्सपिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अंदर एयर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, एयर अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड डिजीज में क्योंकि फाइब्रोसिस हो गई होती है, लंग का वॉल्यूम ही कम हो गया होता है, इसलिए उसका रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो जाता है और उसकी टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें बात हैं जो आपको याद रखने वाली। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। पर्सन फर्स्ट इंस्पायर्स मैक्सिमली टू द टीएलसी, अपनी टोटल लंग कैपेसिटी पे पहले वो जितना मैक्सिमली डीप इंस्पायर कर सकता है वो करता है, एंड देन एक्सेल्स इनटू द स्पायरोमीटर। जो मैंने आपको बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, अगर आप टाइम मिलेगा आपको इस कोरोना के बाद तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इंसान जो है उसको प्रॉपरली पूरा एक्सेल करता है और जितना वो फोर्सफुली कर सकता है और जितना कंप्लीटली कर सकता है, ठीक है। नाउ द टोटल वॉल्यूम चेंजेस ऑफ द एफवीसी आर नॉट ग्रेटली डिफरेंट, ठीक है। वो ये दिखा ये रहा है कि जो टोटल एफवीसी है ना वो चेंज नहीं होती, ठीक है, लेकिन चेंज किस में आती है, मेजर डिफरेंस इन अमाउंट्स ऑफ एयर दैट दीज पर्सन कैन एक्सपायर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये देखो, अगर आप टोटल देखोगे ना तो टोटल में इतना बड़ा चेंज नहीं है। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये शो कर रही है आपकी, ये नॉर्मल में उसने दिखाया, ये उसने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में दिखाया, ठीक है। तो अब एफवीवी1 और एफवीसी इन दोनों को हमने माइंड में रखना है।
अब वो कह ये रहा है कि एफवीसी में इतना बड़ा फर्क नहीं आता। एफवीसी में देखो कितनी चेंज है, यहां पे 4 थी, यहां पे तकरीबन 3.5 हो गई, कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है एफवीसी में। लेकिन FEV1 उसमें देखो कितना बड़ा फर्क है, यानी कि दी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड विच शुड बी द 80% ऑफ FVC, इट शुड बी दी 80% ऑफ FVC इन अ नॉर्मल पर्सन। तो वो नॉर्मल में तो 80% है, लेकिन जहां एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आती है वहां पे 47% रह गया। और अगर इससे भी बुरी डिजीज हो तो इससे भी कम हो सकता है, इट कैन इवन गो टू 20-25%। ये तो उसने एक सिचुएशन बताई है कि यहाँ पे 47% है, लेकिन अगर डिजीज इससे भी ज्यादा बुरी है, इससे भी ज्यादा सीवियर है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, तो इट कैन गो डाउन टू 20-25%। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में FVC जो टोटल फोर्स वाइटल कैपेसिटी है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, लेकिन डिफरेंस किसमें आया है? FEV1 में, दैट इज द फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, उसमें डिफरेंस आया। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि जब ब्रोंकियोल्स कोलैप्स करते हैं तो फिर वो एयर को बहुत स्लोली और बड़ी फोर्स लगा के वो बाहर जाने देते हैं। ठीक है, और ये देखो कि टाइम इन सेकंड्स कितना बढ़ गया है। FVC में इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टाइम इन सेकंड्स देखो कि टोटल FVC अचीव करने में कितना टाइम लग गया है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट 7 सेकंड लग गए हैं। ठीक है, और जब नॉर्मल है तो वो 4.5 सेकंड में हो गया, यानी कि 2.5 सेकंड ये भी बढ़ गए। समझ आ गई इस बात की? किसी को कुछ होता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो नॉर्मल बंदे में तो 80% जो है वो जो भी उसकी FVC होती है, जो नॉर्मल FVC है, वैसे नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी क्या है, किसी को याद है? 4600 ml। ठीक है, तो यहाँ देखो उसने बिल्कुल 4600 ml दिखाई है। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, यहाँ पे वो उसने दिखाया कि 4600 ml, और ये कितने 4.5 सेकंड में उसने अचीव कर ली। ठीक है, ये टाइम इन सेकंड। लेकिन वो ये कह रहा है कि यही FVC कितने सेकंड्स पे चली गई है? 7 सेकंड पे चली गई। अमाउंट वही है, थोड़ी सी बल्कि कम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। थोड़ी सी कम हुई है FVC, लेकिन FEV1 जो है उसमें देखो कितना बड़ा डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसकी वजह से। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। आप कुछ डिजीजेज हैं जो कि पढ़नी बड़ी जरूरी है, वो हम पढ़ लेते हैं। क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइजीमा। अच्छा, एम्फाइजीमा का मतलब क्या है? एक्सेस एयर इन द लंग्स। मतलब आयरॉनिकली हम कह रहे हैं कि ये एक डिजीज है, और हम इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो लंग्स हैं उनमें एक्सेस एयर आ जाती है। ठीक है, नाउ इसमें एम्फाइजीमा में ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस भी चल रहा है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी चल रहा है, और इसकी जो मेन रीजन है वो स्मोकिंग। ठीक है, मेजर इसकी जो चेंजेस हैं जो कि इसमें मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल इसकी मेजर जो कॉजेज हैं जो कि इसमें मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आती हैं, उनमें एक तो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सिगरेट स्मोक भी हो सकता है, और ये जो पोल्यूशन है, जो हमारे इंडस्ट्रियल स्मोक है, वो भी हो सकता है। कोई भी इरिटेंट हो सकता है। ठीक है, जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इरिटेट करता है, caused by inhaling smoke or other substances that irritate the bronchi and bronchioles. Now, chronic infection जो है, it seriously deranges the normal protective mechanism of the airways. ये एयरवेज का जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसको बड़ी बुरी तरह से डीरेंज कर देता है। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि जब हमने वो पढ़े थे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ सिलिया होते हैं। ठीक है, और वो सिलिया जो है वो म्यूकस को टूवर्ड्स फेरिंग्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो नेजल हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो सिलिया जो है उस जो एपिथेलियम पे होते हैं, तो इसमें जो पार्शियल पैरालिसिस ऑफ सिलिया हो जाता है। ठीक है, जो ये निकोटीन का इफेक्ट है।
अब जब म्यूकस मूव नहीं करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज सिलिया, तो क्या होगा, वहां पे म्यूकस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस एक्यूमुलेट होगा, साथ उसके इरिटेंट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस स्टिमुलेशन ऑफ एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन अकर्स। ठीक, वो इरिटेंट्स की वजह से और ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि इस कंडीशन को और ज्यादा एक्सकर्बेट कर देता है, उसको और ज्यादा बुरा कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनहिबिशन ऑफ एल्यूलर मैक्रोफेजेस हो जाती है। जो एल्यूलर मैक्रोफेजेस हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, वो इनहिबिट होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन को कॉम्बैट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, द इन्फेक्शन, एक्सेस म्यूकस एंड इन्फ्लेमेटरी एडीमा, ये तो तीनों चीजें भी हमने पीछे देखी हैं कि इन्फेक्शन है, उसकी वजह से म्यूकस बढ़ा, उसकी वजह से एडीमा हुआ। ठीक है, of the bronchiolar epithelium together cause chronic obstruction of many of the smaller airways. बहुत से airways जो है उनकी obstruction start हो जाती है। Now, the obstruction of the airways makes it especially difficult to expire, जैसे मैंने आपको पहले बताया, thus causing entrapment of air, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि entrapment of air हो जाती है in the alveoli, और alveoli को वो overstretch करते हैं, जिसकी वजह से alveoli की walls जो हैं वो destroy हो जाती हैं। तो एम्फाइजीमा में लार्ज एयर चैम्बर्स बन जाते हैं। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एयर हो गई है। लेकिन क्योंकि एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं और उनकी जो वॉल्स हैं, उनके अंदर जो एल्वेलर कैपिलरीज थी जिनके थ्रू एक्सचेंज होनी थी, वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए जो है इसमें ओवरऑल जो एफिशिएंसी ऑफ लंग है वो नीचे आ जाती है, यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नाउ कंबाइंड विद लंग इन्फेक्शन इट कॉजेज मार्क्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एज मच एज 50 to 80% ऑफ द एल्वेलर वॉल्स, यही जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, नाउ इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो फिजियोलॉजी पे जो इसके इफेक्ट आएंगे एम्फाइजीमा के, वो इसकी स्वेरिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक तो कि ये डिजीज कितनी स्वेयर है, और दूसरा रिलेटिव डिग्री ऑफ ब्रोंकियोलर ऑब्स्ट्रक्शन वर्सेस लंग पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कि ब्रोंकियोलर ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है और लंग पैरेन्काइमा कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। नाउ इसमें अब एबनॉर्मैलिटीज क्या हो सकती। ठीक है, एक तो ये कि इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एक्सपायर करने के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या देखा था एट रेस्ट, जब हमने वर्क ऑफ ब्रीदिंग की बात की थी कि इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव है और एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव है। एक्सपिरेशन में बड़ा कम वर्क होता है और इंस्पिरेशन में ज्यादा वर्क होता है। लेकिन पैथोलॉजिकली, ये तो हम फिजियोलॉजिकल बात कर रहे थे, तो जब हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली एस्थमा टाइप कंडीशंस की, जहां पे कि रेजिस्टेंस टू एयरवे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो वहां पे जो एयरवे रेजिस्टेंस वर्क है वो बढ़ जाता। ठीक है, so it is especially difficult for the person to move air through the bronchioles during expiration because the compressive forces on the outside of the lung not only compress the alveoli but also compress the bronchioles. ठीक है, जैसे अभी पहले हमने कहा था कि सिर्फ एल्वेलाई कोई नहीं करती, ब्रोंकियोल्स को भी करती। So marked loss of alveolar walls greatly decrease the diffusing capacity of the lung. ये भी बात अभी मैंने आपसे पहले की है। ठीक है, क्योंकि जब एल्वेलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर जाहिर उनमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां कैपिलरीज नहीं रहती। नाउ दिस reduces the ability of the lungs to oxygenate the blood and to remove carbon dioxide from the blood. Of course, very natural, a very natural consequence. ठीक है, the obstructive process is frequently much worse in some parts of the lung than in other parts. ये भी एक बात है कि कुछ पार्ट्स में जहां पे ज्यादा एल्वुलाई डिस्ट्रॉय हुए हैं, वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है वो ज्यादा बुरा होगा। जहां पे एल्वुलाई की रेशियो डिस्ट्रॉय होने की कुछ कम है, वहां पे ये कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सम पोर्शंस ऑफ द लंग्स आर वेल वेंटिलेटेड whereas other portions are poorly ventilated. ठीक है, कुछ में जो है वो एयर वेंटिलेशन बेहतर होगी और कुछ जो है वहां पे बहुत बुरी होगी। नाउ ये सिचुएशन जो है ये क्या करेगी, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स हमें डिफरेंट देगी। ठीक है,
कुछ पार्ट्स में वुड बी अ वेरी लो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, जिसको हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन पुअर एरेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड की जो परफ्यूजन है वो नहीं होगी, एयर तो होगी, परफ्यूजन नहीं होगी, यानी कि वहां से क्यों नहीं होगी, कि वहां फिजियोलॉजिकल शंट होगा, वहां ब्लड आ नहीं रहा, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो, सॉरी, ब्लड तो आ रहा है, ठीक है, ब्लड तो आ रहा है, फिजियोलॉजिकल शंट, लेकिन वहां पे उसको एयर नहीं मिल रही, ठीक है। इसी तरह इन अदर पार्ट्स में अ वेरी हाई वी और क्यू रेशियो इन अदर पार्ट्स, जहां के फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, रिजल्टिंग इन वेस्टेड वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन तो आ रही है, ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि दोनों हमें हमें दोनों मिलेंगी एक ही लंग में, फिजियोलॉजिकल शंट भी मिलेगा और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी मिलेगी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट भी मिलेगा और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी मिलेगी एक ही लंग के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, यानी कि वी ओवर क्यू रेशियो की डिस्टर्बेंस एट टू एक्सट्रीम्स हमें मिलेगी एक ही लंग में। क्यों? क्योंकि उसी लंग में कुछ पोर्शन जो है उसके एल्वेलाई अभी कुछ बेहतर हालत में है और कुछ पोर्शन जो है उसके एल्वेलाई जो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके, ठीक है। नाउ तो loss of large portions of the alveolar walls also decreases the number of pulmonary capillaries through which the blood can pass. Of course, सारे pulmonary capillaries ही destroy हो गई जो alveoli में जा रही थी, तो इसकी वजह से क्या होगा, pulmonary vascular resistance often increases markedly. जो remaining pulmonary vessels होंगी उनमें resistance बढ़ जाएगी, ठीक है, causing pulmonary hypertension, जिसकी वजह से pulmonary hypertension हो जाएगी. This in turn overloads the right side of the heart and frequently causes right-sided heart failure. ठीक है, ये बात समझ में आई? पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वहां पे डैमिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाएगी और राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉनिक एम्फोजीमा जो है ये प्रोग्रेसिवली ग्रो करता है या प्रोसीड करता है ओवर मैनी ईयर्स. Hypoxia and hypercapnia. Hypoxia is less oxygen in tissues and hypercapnia is increased carbon dioxide in tissues. ठीक है, ये दोनों ही डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ hypoventilation of many alveoli plus loss of alveolar walls. ठीक, तो इन सब चीजों का नेट इफेक्ट क्या हुआ? Severe prolonged devastating air hunger. एयर हंगर क्या होती है कि आप गैस्पिंग करते हैं, आप एयर को, क्योंकि आप एक्सपायर नहीं कर रहे प्रॉपरली इसलिए आप गैस्प करते हैं, जोर भी बहुत ज्यादा फोर्स पे एक्सर्ट करते हैं टू एक्सपायर द एयर, उसकी वजह से आपका जो ब्रीदिंग वर्क है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से आप जो है ना वो गैस्प करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये दोनों चीजें, हाइपोक्सिया भी और हाइपरकैप्निया भी, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड तो इसको जो है हाइपोक्सिया भी और हाइपरकैप्निया भी जो है वो दोनों बढ़ते रहते हैं एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी डिजीज आ गई निमोनिया. निमोनिया क्या है? इसको हम लंग इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि एल्वेलाई में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ any inflammatory condition of the lung in which some or all of the alveoli are filled with fluids and blood cells, ठीक है, इसको हम निमोनिया कह सकते हैं. सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो बैक्टीरियल निमोनिया है, caused by most frequently pneumococci. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है pneumococci, उसकी वजह से it is the most it occurs most frequently. इन्फेक्शन स्टार्ट कहां से होती है? एल्वेलाई में, ठीक है. पल्मोनरी मेम्ब्रेन जो है इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, क्योंकि पल्मोनरी मेम्ब्रेन किस किस के दरमियान में होती है? एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के दरमियान, ठीक है. तो पल्मोनरी मेम्ब्रेन जो है इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड हाईली पोरस. जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है. तो फ्लूइड भी और इवन रेड ब्लड सेल भी और व्हाइट ब्लड सेल भी वो लीक करते हैं आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वेलाई.
तो ये कोई नॉर्मल कंटेंट्स तो नहीं है एल्वेलाई के। एल्वेलाई में तो एयर होनी चाहिए और उसकी जो कैपिलरीज उसमें से गुजर रही हैं, उसकी वॉल्स में से, उसमें ब्लड होना चाहिए। तो ब्लड को एल्वेलाई के अंदर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड जो है ब्लड में से निकल के वो लीक करता है एल्वेलाई में, और उसके साथ साथ इवन सेल्स भी, रेड ब्लड सेल्स भी और व्हाइट ब्लड सेल्स भी लीक कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एल्वेलाई जो है वो चोक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। So infected alveoli becomes progressively filled with fluid and cells. Infection spreads by extension of bacteria or virus from alveolus to alveolus. एक एल्वेलस से दूसरे एल्वेलस में जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करती रहती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्वेलाई जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये इन्वॉल्व होते हैं ये एल्वेलाई, so large areas of the lung, sometimes whole lobes or even a whole lung can become consolidated, ठीक है। क्या मतलब है कि they are filled with fluid and cellular debris, ठीक है। फ्लूइड और सेलुलर डेब्री से वो फिल हो जाते हैं और कंसोलिडेट हो जाते हैं एक तरह से। मतलब ये है कि इस सिचुएशन में उनमें गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। जिस पोर्शन में ये इतना ज्यादा फ्लूइड फिल हो जाएगा और जिस पोर्शन में इतने ज्यादा सेल डेब्री एक्यूमुलेट कर जाएगा, वो एक तरह से कंसोलिडेट कर जाएगा और वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में तो ये लोकलाइज्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेजेस में ये फैलता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लंग के पोर्शन को इन्वॉल्व करता जाएगा। तो early stages में this condition can cause two major pulmonary abnormalities: reduction in total available surface area for the respiratory membrane, of course, बड़ी रैशनल सी बात है कि जब एल्वेलाई जो है उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, वहां पे सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, तो ऑफ कोर्स वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि बिकॉज दैट दोज एल्वेलाई विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन एक्सचेंज एनी मोर, ठीक है। तो ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कम हो जाएगा, ठीक है। अ डिक्रीज्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ऑफ कोर्स ये भी एक पक्की बात है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे एयर है तो ब्लड नहीं है, कहीं पे ब्लड है तो एयर नहीं, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो किस तरफ लीड करेंगे ये? बोथ दीज इफेक्ट्स कॉज हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया, ठीक है, वो जो जैसे कि हम अभी पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ब्लड पासिंग थ्रू द एरिएटेड लंग्स, ये अब देखो ये एक चीज उसने दिखाई है, ये अब डायग्रामेटिकली देखें तो ये ज्यादा अच्छी नजर आएगी आपको। ये डायग्राम, ये उसने राइट लंग दिखाया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ये उसने लेफ्ट लंग दिखाया है जिसमें निमोनिया है, ठीक है। अब ये दिखा ये रहा है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो दोनों में एक जैसी है, हाफ ब्लड इधर जा रहा है, हाफ ब्लड इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हाफ ब्लड है जो राइट में आ रहा है, इसकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन फुल है, 97% है। लेकिन जो हाफ ब्लड इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, वहां पे सैचुरेशन सिर्फ 60% है। तो इसका मतलब है जो मीन सैचुरेशन है वो 78% निकल आई। और फिर वही बात यही आपके कोरोना में हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही है। मैं उस दिन भी आपको ये बता रहा था, ठीक है, क्योंकि आपके लंग में निमोनिक चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं कोरोना में, ठीक है। आपका लंग जो है वो निमोनिक पैचेस शो करना शुरू कर देता है, उसमें निमोनिक चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो दोनों लंग्स में आनी शुरू हो जाएंगी तो सिचुएशन और बुरी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों में वो निमोनिक चेंजेस रिवर्स नहीं होती या वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती हैं, प्रोसीड करती रहती हैं, उनमें फिर डेथ जो है वो इमिनेंट हो जाती, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि जो लंग ठीक है उसमें एरिएशन बिल्कुल, उसमें ब्लड जो है वो हाफ जा रहा है, हाफ दूसरे में जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक में 97% ऑक्सीजन सैचुरेशन मिल रही है, एक में 60% मिल रही है, इसको मतलब मीन जो है वो 78% मिल रही है, विच इज वेल बिलो द रिक्वायर्ड नॉर्मल वैल्यू। कम से कम 95 होनी चाहिए, आइडियली 97 होनी चाहिए, लेकिन 95 जरूर होनी चाहिए, और 90 से नीचे जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है,
ठीक है, अच्छा जी। अब हम आगे, अगली डिजीज है एटिलेक्टेसिस। ये है कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। एटिलेक्टेसिस इज कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। इसमें एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। नाउ कैन अकर इन लोकलाइज्ड एरियाज ऑफ अ लंग और इन एन एंटायर लंग। ये भी लोकलाइज एरिया ऑफ लंग में भी हो सकता है और एंटायर लंग में भी हो सकता है। इसकी जो कॉमन कॉजेज है वो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, या तो एयरवे टोटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर लैक ऑफ सर्फेक्टेंट है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें हमें को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे को हम देख लेते हैं कि जब टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे होती है तो कैसे लंग कोलैप्स करता है, यानी कि उससे आगे जो एरिया होता है लंग का वो कैसे कोलैप्स करता है जब एक जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। नाउ इसकी सबसे पहले इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्शन की? ब्लॉकेज ऑफ मेनी स्मॉल ब्रोंकाई विद म्यूकस। बहुत से स्मॉल ब्रोंकाई जो है वो म्यूकस से ब्लॉक हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर ब्रोंकस बाय अ लार्ज म्यूकस प्लग और सम सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज ट्यूमर। या तो कोई बहुत बड़ा म्यूकस प्लग बन गया और उसने रिलेटिवली मेजर ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है। वो ट्यूमर इनसाइड द लंग भी हो सकता है, वो बाहर से भी प्रेशर डाल रहा हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। वो प्रेशर बाहर से भी एक्सर्ट हो रहा हो सकता है और वो ट्यूमर जो है वो इनसाइड द लंग भी हो सकता है और वो किसी ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब एक जगह ब्लॉक हो गई लंग में, एक जो पैसेज वे वो ब्लॉक हो गया। नाउ द एयर एंट्रैप्ड बियॉन्ड द ब्लॉक is absorbed within minutes to hours by the blood flowing into the pulmonary capillaries। वहां पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उनमें ब्लड तो आ रहा है, तो वो ब्लड, वो पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो जो एयर वहां पे आगे एंट्रैप हुई होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, अब आगे दो सिचुएशंस है। अगर तो इफ द लंग टिश्यू इज प्लायबल इनफ, अगर तो लंग टिश्यू इलास्टिक है, ठीक है, उसमें प्लायबिलिटी है, so this will lead simply to the collapse of the alveoli। तो जितने एल्वुलाई आगे हैं वो सारे के सारे कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर लंग रिजिड है, अगर जहां ब्लॉकेज हुई है उससे आगे का जो एरिया है लंग का वो रिजिड है, ठीक है, उसमें कोई फाइब्रोसिस हुई है और वो कोलैप्स नहीं कर सकता, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर फ्रॉम द एल्वुलाई क्रिएट्स वेरी नेगेटिव प्रेशर। एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर तो होनी है क्योंकि वहां पे कैपिलरीज आ रही हैं, कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है और वहां से एयर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो अगर तो वो लंग टिश्यू प्लायबल है, इलास्टिक है, तो वो इजीली कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो फाइब्रोटिक है, यानी कि वो कोलैप्स नहीं कर सकता इस तरह इजीली, तो क्या होगा कि वहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर जो है वो वहां पे बहुत बड़ा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देंगी विद इन द एल्वुलाई, ठीक है, जो कि which will pull fluid out of the pulmonary capillaries into the alveoli। जो कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज एयर एब्जॉर्ब कर रही हैं वहां से वो फ्लूइड को खींच लेगी, thus causing the alveoli to fill completely with edema fluid। और इन एल्वुलाई को वो किससे फिल कर देंगी? एडिमेटिस फ्लूइड से, जो कि कैपिलरीज से खींचा गया, ठीक है। और ये यूजुअली कब होता है? जबकि एक मेजर एरिया या होल लंग जो है वो ब्लॉक हुआ होता है, तब ये होता है, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो प्लायबल है तो सिर्फ एक छोटा एरिया जो है वो जो है कोलैप्स कर सकता है। बड़ा एरिया कोलैप्स करने के लिए जरूरी है कि जो ब्लॉकेज है वो भी बड़े एरिया की हुई होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे समझने वाली बात इतनी है कि अगर तो लंग्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ठीक है, अगर तो आगे एंट्रैप्ड एयर जो है वो एरिया जो कि ब्लॉकेज के बाद आ रहा है वहां पे एयर एंट्रैप हो गई। अब वो एंट्रैप्ड एयर जो है उसको जो उस एरिया में जो कैपिलरीज आ रही हैं, जो पल्मोनरी कैपिलरीज आ रही हैं, वहां से एयर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अगर तो वो एरिया इलास्टिक है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, इजीली कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो रिजिड है तो उस एरिया में एयर के निकलने की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, और ये नेगेटिव प्रेशर जो है ये उन्हीं कैपिलरीज में से जिन्होंने कि एयर इसमें से एब्जॉर्ब की है उसमें से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर, ठीक है।
इस वजह से जो एल्वियोलाई है वो फिल हो जाएंगे फ्लूइड से, एडिमेटस फ्लूइड से। ठीक है, ये देखो यहां उसने ये दिखाया। अब वो बता ये रहा है कि collapse of the lung tissues not only occludes the alveoli but almost always increases the resistance to blood flow। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? collapse of the lung tissue not only occludes the alveoli but almost always increases the resistance to blood flow through the pulmonary vessels of the collapsed lung। जब लंग एक दफा collapse हो जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जहां पे एयर नहीं है वहां पे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक असूल है कि जहां जिन एल्वेलाई में एयर नहीं होती ब्लड वहां नहीं जाता, उस तरफ की एयर पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती। ठीक है, सो वो कह रहा है कि कोलैप्स ऑफ द लंग टिश्यू नॉट ओनली ओक्लूड्स द एल्वेलाई, ये नहीं कि वो सिर्फ एल्वेलाई को ओक्लूड करता है, बट इट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी वेसल्स ऑफ द कोलैप्स लंग। एक दफा वो कोलैप्स हो गया, उसके बाद वहां पे बहुत कम जो है वो अच्छा, ठीक है, करेंगे, ठीक हो गया। तो ब्लड बस बचे हुए 2 मिनट। ब्लड फ्लो थ्रू द एटिलेक्टिक लंग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड and most of the blood is routed through the ventilated lung and therefore becomes well aerated। यानी कि जो एटिलेक्टिक लंग होता है या एटिलेक्टिक पार्ट ऑफ लंग होता है वहां ब्लड नहीं जाता, बल्कि जो नॉर्मल हेल्दी पार्ट होता है उधर ब्लड जाता है। तो उसका इफेक्ट ये देखो, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये हो रहा है, ये देखो, ये एटिलेक्टिक लंग है, ये जो लेफ्ट है, और राइट जो है ये नॉर्मल लंग है। तो हुआ क्या कि वहां पे हमने देखा था कि ब्लड जो है वो हाफ उसमें निमोनिया में हाफ जो है वो एक लंग में गया था, हाफ दूसरे में गया था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5/6 जो है वो हेल्दी लंग में जा रहा है और 1/6 जो है वो डिजीज लंग में जा रहा है। तो जिसकी वजह से उधर जो है वो सैचुरेशन 97% है और इधर जो सैचुरेशन है वो 60% है। ठीक है, यानी कि मेनली मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो 97% सैचुरेटेड हो गया क्योंकि वो हेल्दी लंग की तरफ चला गया बजाय डिजीज लंग की तरफ आने के, और जो डिजीज लंग था उसमें वो 60% रह गई सिर्फ। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि वहां ब्लड ही बहुत थोड़ा था, इसलिए जब हम मीन सैचुरेशन निकालते हैं तो 91% निकल आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फायदा हो गया, यानी कि एटिलेक्टेसिस में कम से कम नेचर ने एक ये सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है कि जो डिजीज लंग है उसकी तरफ ब्लड ही बहुत कम जाता। ठीक है, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट कैसे? अच्छा, अब ये एस्थमा और टीबी ये 2 चीजें रह गई हैं। मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। एस्थमा जो है वो तो एलर्जिक है, आप एलर्जिक रिएक्शन में उसे पढ़ चुके हैं, ड्यू टू आईजीई के रिएक्शन की वजह से, जब वो मास्ट सेल्स और उसके साथ मास्ट सेल्स के साथ और जब उनको वो उसके साथ उसका एक्शन होता है आईजीई का मास्ट सेल्स के साथ, तो उसमें से वो ब्रेडिकाइनिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस और हिस्टामिन, ये चीजें निकलती हैं जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करती। ठीक है, चलो मेरा को नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें पढ़ा दूंगा, अदरवाइज इसको फिर अब तो ये 2 डिजीजेस तुम्हें खुद से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे किसी वक्त कवर करवा दूं। ओके, थैंक यू सो मच।